नमस्कार, मैं डॉक्टर राजशंकर घोष। मैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में सीनियर एडवाइजर हूँ वैक्सीन डिलीवरी प्रोग्राम। For the last 30 years, I have spent my time on immunization and infectious diseases. I'm a public health physician. Today, we are going to discuss about Madhya Pradesh. Madhya Pradesh, the program on COVID vaccination, how it started, how it progressed, and how it has excelled, and actually set an example before many other states in the country in terms of how to implement a large campaign in a very large population across very difficult terrains within the state. About 2 months back, I was in the state. I had witnessed the program in certain districts. But today, we are going to hear from the people who are in the field and leading the action, the district immunization officers. And today we have chosen 4 district immunization officers who have 4 stories to tell us. Before we get into this, I just wanted to tell the audience about COVID vaccinations principle 4E philosophy. And I wanted to tell this because we will be hearing about these 4 E's from the various district immunization officers from whom we will hear today. The first E is around the efficiency of conducting the program. The second D is around the issues of equity, that the vaccine reaches everyone, everywhere. It reaches the last mile at the last house. The third E is around the issue of evidence, how evidence has driven the program across the state. And the fourth E, which is a very important E, and I will tell you about it at the end of the program also as we hear the stories. It is about empathy. Empathy in understanding the problems that people face in accessing vaccine, in getting their shots in time, and how these soldiers, the captains in the field of a large army of health workers, have actually considered the people's problem. When I spoke to various officers in Madhya Pradesh, one of the things that was striking, and I had written about it in various social media posts, is that Madhya Pradesh program is people-centric. The Honorable Chief Minister of the state and all the different dignitaries, the bureaucrats and the politicians, have done wonder in designing and executing a program which is centered around the people. So in today's conversation, we will hear this story about how the program was centered around the people in the state of Madhya Pradesh. But before I move further, let me introduce the participants today. आज हमारे बीच में Dr. Tarun Gupta, the District Immunization Officer of Indore. मैं शुरू में डॉक्टर गुप्ता को बधाई देना चाहता हूं, बिकॉज इंदौर हमारे लिए सारे देश में एक बहुत प्राइड के साथ हम इंदौर के बात करते हैं, क्योंकि इंदौर is the cleanest city in the country for many successive years now. And ये नहीं हो पाता अगर Dr. Gupta and his colleagues and various other government functionaries and the citizens of Indore would not have given their best in order to keep the city clean. We also saw in Indore the first outbreaks in the country, the massive devastation that it happened in Indore, and we were wondering what is happening to the city, what is happening to the district. But the way it rebounds back, we will hear that story from Dr. Gupta. Second, मैं परिचय करवाना चाहता हूं Dr. Rahul Ganava से. Dr. Rahul Ganava is the District Immunization Officer of Jhabua District. झाबुआ सारे देश में जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत संख्यक लोग, जनजाति
यानी ट्राइबल पॉपुलेशन से हैं. अराउंड 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज ट्राइबल. ट्राइबल पॉपुलेशन में कुछ यूनिक चैलेंजेस होते हैं, कुछ यूनिक अपॉर्चुनिटीज होते हैं. मैं जब छत्तीसगढ़ में और झारखंड में काम करता था पोलियो लेके, जब ट्राइबल एरिया में हम लोग काम करते थे, एक कंप्लीट डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन करना पड़ता था, एक डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच हमें देना पड़ता था. कुछ बहुत बड़े एडवांटेज होते थे, कुछ इश्यूज चैलेंजेस आ जाते थे. तो हम उनसे सुनेंगे कि कैसे कोविड वैक्सीनेशन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में आपने इम्प्लीमेंट किया. थर्ड, आई हैव विथ मी डॉक्टर संजय ऋषिश्वर. Dr. Sanjay is from Shivpuri district, and one of the striking features from Shivpuri, the story that we will primarily hear, is around the third E that I spoke of, the issue of equity. How equity has been a major kind of focus for the district and the district immunization officer, health workers. कैसे आपने इक्विटी के बारे में प्लान किया था, कैसे विथ एम्पैथी यू हैव थॉट अबाउट द पीपल, वो हम आपसे सुनने वाले हैं. एंड लास्ट वी हैव डॉक्टर बसंत अग्निहोत्री फ्रॉम रेवा डिस्ट्रिक्ट. रेवा डिस्ट्रिक्ट इज अ district with many difficult areas to access, but health workers have reached those difficult to reach places and have reached out to the people. हम सुनेंगे आपसे कि कैसे आपने प्लान किया, कैसे आपने वैक्सीन डिलीवर किया, कैसे आपने वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाया, एंड कैसे लोगों में वैक्सीन के बारे में एक डिमांड जनरेट किया आपने. वो कहानी हम आपसे सुनेंगे. बट हम शुरू करते हैं इंदौर से. सो इंदौर से डॉक्टर तरुण गुप्ता will begin with you. So as I was telling you, in Indore, the first news that we heard very early in 2020, when there was this massive outbreak in the city, सब जगह पे headlines था कि the cleanest city in the world, in India, has one of the most challenging COVID outbreaks. And उसके बाद जब प्रोग्राम शुरू हुआ on 16 January 2021, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लॉन्च की प्रोग्राम इन इंडिया, इंदौर में हमने देखा कि द प्रोग्रेस इज हैपनिंग, बट इनिशियली थोड़ा स्लो था, बट देन सडनली द प्रोग्राम पिक्ड अप. हम आपसे सुनना चाहते हैं कि शुरुआत का प्लानिंग कैसे किए थे, कैसे आपने ये डिवास्टेशन को झेला, एंड हाउ डिड वी प्रोग्रेस इन इंदौर इन द वैक्सीनेशन प्रोग्राम. ओवर टू यू डॉक्टर गुप्ता. Good afternoon, sir. Definitely, Indore is the cleanest city since last consecutive 5 years. Indore achieved that this tamga ki it is the cleanest city, और it is लोगों की, यहाँ के लोगों में बसा हुआ है कि नंबर 1 आने का एक जज्बा लोगों में बना हुआ है. यही फेस शुरुआती दौर में ये रहा कि ड्यूरिंग 2021 लार्ज पेंडेमिक इज देयर. इंदौर जो है वो एमपी का सबसे ज्यादा सफरर डिस्ट्रिक्ट था, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ कोविड केसेस थे. एज फॉर ऑफ योर नॉलेज, इंदौर इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ एमपी, और इट इज ऑल्सो बिजनेस हब, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेशन बहुत ज्यादा होता है और इंडस्ट्रियल एरियाज भी हैं काफी सारा. तो इट्स टोटली बिजनेस हब, काफी सारा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है. Of Indore district particularly, 70% population is urban population. Of them, approx 1/3 is the slum, and slum-like population is there. So densely populated है और business है, migrating population जो है वो बहुत ज्यादा थी. कोविड केसेस काफी मात्रा में थे, काफी एरियाज जो हैं वो कंटेनमेंट में थे. जब 16 जनवरी को प्रोग्राम लॉन्च हुआ, तब हमने इंदौर वाज द सिटी इन जिसमें कि लाइव कोऑर्डिनेशन हुआ था, जिसमें पीएम ने एड्रेस किया था. इंदौर में लॉन्चिंग हुआ था, 6 हॉस्पिटल्स का हमने स्टार्ट किया था. इनिशियल प्लानिंग वाज 105, बट
जो प्रोग्राम का स्टार्ट हुआ था उसमें 105 सेंटर से हमने स्टार्ट किया था। हेल्थ केयर वर्कर्स में रिस्पॉन्स वाज वेरी गुड। हेल्थ केयर वर्कर ने वैक्सीनेशन को एक्सेप्टेंस किया, बहुत अच्छे से लिया। सेकंड, फ्रंटलाइन वर्कर का वैक्सीनेशन आया फरवरी में। दे एज दे आर पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, हाउसिंग एंड अर्बन नगर निगम के एम्प्लॉयज थे, पीआरआईज के एम्प्लॉयज थे। तो चूंकि बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट उन्होंने भी वैक्सीनेशन अच्छे से करवाया। सेम टाइम जब फ्रंट लाइन का वैक्सीनेशन हुआ, हेल्थ केयर का वैक्सीनेशन हुआ, इस टाइम तक कोविड में भी काफी पीक होने लगा था। अभी तक नॉर्मल पब्लिक के लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं हुआ था। पीपल्स में हेजिटेंसी थी कि वैक्सीनेशन कौन लगाएगा, पहले हेल्थ केयर को लगा लेने दो, देखते हैं क्या होता है, फ्रंट लाइन को लगा लेने दो, देखते हैं क्या होता है। तो हेजिटेंसी थी। जब हमने 60+ का वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ तो कुछ नंबर ऑफ बेनिफिशरीज आने लगे। अगेन दे आर वेटिंग फॉर दैट कि देख लेते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है, कहीं कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं आते। एज वैक्सीन इज न्यू, सभी के मन में हेजिटेंसी थी, थोड़ा डर था। एक्चुअली जब कोविड का पीक आया और उसमें जब नॉर्मल पब्लिक इन्फेक्ट होने लगी और हेल्थ केयर वर्कर ने अपना पूरा वर्क दिया, अपना पूरा टाइम डिवोशन दिया, चाहे प्राइवेट का रहा हो या गवर्नमेंट सेटअप का रहा हो। वहीं फ्रंटलाइन वर्कर में नगर निगम के एम्प्लॉयज हो, उन्होंने पूरा अपना वर्क उसमें काम किया। और जब देखा कि कोविड वेव में ये लोग सबसे कम इन्फेक्ट हुए जो वैक्सीनेटेड थे, यही लोगों को क्लिक हुआ कि नहीं, वैक्सीन इज इफेक्टिव एंड इट्स वर्किंग वेल। तो यहां से लोगों का एक्सेप्टेंस बढ़ने लगा टुवर्ड द वैक्सीनेशन। यह हमारे लिए टर्निंग रहा कि हम हेजिटेंसी जो है वो बिकम्स एक्सेप्टेंस नाउ। तो वैक्सीन को लोगों ने बिल्कुल, जिसको बोलना चाहिए, हम हाथों हाथ लिया या ईगरली उसको एक्सेप्ट करना चालू किया और हमारा वैक्सीनेशन पिक हुआ। डे बाय डे हमको सेंटर्स इंक्रीज करना थे। एज ऑफ नाउ मैंने बोला कि इंदौर इज द लार्जेस्ट सिटी, करीब हमारा 4.5 मिलियन का पॉपुलेशन है इंदौर का। आउट ऑफ देम 2.8 मिलियन आर हमारे बेनिफिशियरी, टारगेट बेनिफिशियरीज आर देयर। तो 28 लाख लोगों को हमको वैक्सीनेट करना था। सो वी हैव टू क्रिएट large number of centers, we have to arrange large number of vaccinator also, and we have to maintain a vaccine supply to fulfill that demand also. So तीनों मोर्चों पे काम करना रहा। Again, here the leadership plays the major role in this particular success of our vaccination, like that strong political will and strong leadership leads to 100% vaccination of first dose, as Indore was the first city in 100% vaccination of first dose. So under the leadership of district magistrate, as far as designed by state, district task force were made, block task force were made, but in our Indore we made block level and ward level. In urban Indore is divided in 85 wards, so we made ward level of task force in which जिसमें कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स थे, उस पर्टिकुलर वार्ड के सोशल इन्फ्लुएंसर्स थे। देयर रोल इज डिजाइंड कि उन्हें उनके एरिया के पर्टिकुलर कवर करने के लिए स्पेसिफिक एरिया बताना है, सीवीसी प्रोवाइड करना है एंड उनको मोबिलाइज कराना है उन पर्टिकुलर वार्ड के जो बेनिफिशियरीज हैं उन पर्टिकुलर सीवीसीज पे। तो वी प्लेड, तो इंदौर का जो वार्ड लेवल सिस्टम है, हमने वहां पे ब्लॉक वार्ड लेवल कमेटीज डिसाइड की। उनको रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रही कि उन्हें अपना एरिया चूज करना है, उन्हें अपने एरियाज के लोगों को वैक्सीनेट कराने, मोबिलाइज करना है, उसके लिए क्या आईसी करना है उनको। तो जो सोशल वर्कर्स थे, सोशल मोबिलाइजर्स थे, दे गेट इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर इवेंट। वहां पे एक ड्यूरिंग लॉकडाउन कई सारे मतलब जितने जितने बिजनेस थे वो सब बंद थे, लोग घरों में थे। तो एक भाव मिला कि इस बहाने हम सेवा कर पाए लोगों की। तो यहाँ पे हम मतलब ये जनरेट कर पाए कि उनके बीच में सेवा भाव आया और उन्होंने अपना पर्टिकुलर प्लेस प्रोवाइड किया। किसी ने धर्मशाला प्रोवाइड की कि यू कैन मेक दिस एज अ वैक्सीनेशन सेंटर, या किसी ने अपना स्कूल खोल दिया और अपने ऑपरेटर्स और अपना स्टाफ एज अ वॉलंटियर लगाया। तो यहाँ पे हर वार्ड लेवल पे
हर व्यक्ति को एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको आपका वार्ड पूरा वैक्सीनेट करना है और उसके लिए आप अच्छे से अच्छा एरिया चूज करें। तो यहाँ पे हम उनमें सेवा भाव जनरेट कर पाए और उन्होंने बीइंग ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। जैसा इंदौर में हर हर किसी को बोलना चाहिए कि सफाई के प्रति जुनून है, कि अगर मैं भी एक टॉफी भी खाता हूँ रैप में रखता हूँ, सेम थिंग है। हमें जल्द से जल्द हमारे है और प्रोटेक्ट हम कर पाएंगे जब हम जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कर। वेरी गुड। वैक्सीनेटर जितनी हमारी सीवीसीज थी उन्हें हमें बनाना था, उसके लिए हमें नंबर ऑफ वैक्सीनेटर्स चाहिए थे। तो चूंकि लॉकडाउन था, सारे बच्चे जो नर्सिंग स्टूडेंट्स थे वो भी अपने घरों पे चले गए थे। तो कॉलेजेस से हमने कांटेक्ट करके नर्सिंग स्टूडेंट को बुलवाया और उनको लार्ज नंबर में हमने ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर हमने उनकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की। जो इसके लिए वेरीफायर्स की रिक्वायरमेंट थी, तो वेरीफायर्स का पूल हमने तैयार किया और उनको अलग अलग एरियाज में डिप्लॉय किया। इनिशियल फेजेस में हमने जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे उनको इनकॉर्पोरेट किया एज ए फ्री वैक्सीनेशन सेंटर। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक बेनिफिट हमें ये मिला कि चूंकि पूरा सेटअप था हॉस्पिटल, इनिशियल फेज में जो AE5 का डर था, AE5 को मैनेज करने का एक मन में ये था कि हाउ विल मैनेज AE5। तो वहां पे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स अवेलेबल थे, AE5 मैनेज करने के लिए ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल थी। तो इनिशियल ड्राइव में हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी काफी अच्छा योगदान दिया। इसके अलावा एक और मॉडल हमारे इंदौर में काफी सक्सेस रहा, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट वर्ग ऑफ सोसाइटीज लाइक कम्युनिटीज, बोहरा कम्युनिटीज, सिख कम्युनिटीज, माहेश्वरी कम्युनिटीज, अग्रवाल कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी, दे कम फॉरवर्ड इन हेल्पिंग अस। वो लोग सामने आए और दे कम फॉरवर्ड कि हम हमारा सेंटर हम क्रिएट करते हैं फॉर द पब्लिक ऑफ इंदौर। तो उन्होंने अपने पर्टिकुलर सेंटर्स लाइक मॉस्क्यू में हमने मस्जिद में सेंटर्स बनाए, गुरुद्वारा में सेंटर्स बने, वहां पे उन्होंने अपने वॉलेंटियर्स दिए, मैन पावर पूरा दिया, कंप्यूटर सिस्टम, जितनी भी लॉजिस्टिक थी वो अवेलेबल कराया। इवन जो हमारे वैक्सीनेटर्स के लिए फूड और जितना रिफ्रेशमेंट था वो सब प्रोवाइड किया। तो अलॉन्ग विद देयर कम्युनिटी उन्होंने इंदौर की अदर पब्लिक के लिए भी काफी हेल्पफुल रहा। तो ये सोसाइटी वाला मॉडल भी हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल रहा, कि जिसमें सारे वर्ग, जिसको बोलना चाहिए कि समाज का डिफरेंट डिफरेंट वर्ग जो है वो शामिल हुआ वैक्सीनेशन में। थैंक यू डॉक्टर गुप्ता। आई विल कम बैक टू यू बिकॉज मैं आपसे बाद में और एक चीज सुनना चाहता हूं, आपका ये जो पब्लिक प्राइवेट मॉडल, बट लेट मी कम बैक टू यू ऑन दिस। बट थैंक यू, आपने ये जो डिस्क्राइब किया कि कैसे आपने शुरुआत के चैलेंजेस ओवरकम किए, हाउ यू मेड द प्रोग्राम रियली ग्रो, and 100% first dose, one of the first cities in the country. So congratulations. I now, wanted to move to hearing something about the rural area. And when I talk about it, there is no better person to talk on this than the district immunization officer from Rewa, Dr. Basant Agnihotri. What I do here is कि आपने आपके डिस्ट्रिक्ट में जो बहुत ही बिग रूरल पॉपुलेशन है वहां पे आपने कैसे वैक्सीन पहुंचाया, एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो मॉनिटरिंग के बारे में मैंने आपका स्टेट ईपीआई ऑफिसर डॉक्टर शुक्ला से भी सुना कि बहुत अच्छा मॉनिटरिंग हुआ था वो डिस्ट्रिक्ट में। तो हम आपसे सुनना चाहते हैं डॉक्टर अग्निहोत्री कि आपका रूरल प्लानिंग और आपका मॉनिटरिंग आपने कैसे की। ओवर टू यू डॉक्टर अग्निहोत्री। नमस्कार सर, सभी मित्रों को भी नमस्कार। और ये तो सर छोटी सी डिस्ट्रिक्ट की टीम है, इसके अलावा ब्लॉक लेवल टीम है, फिर ग्रास रूट लेवल टीम है, बहुत बड़ी टीम है। एक्चुअली हम लोगों ने जो हमारा ग्रुप बना रखा है इम्यूनाइजेशन का, उसका नाम ही रख रखा है टीम इम्यूनाइजेशन रीवा। तो इट्स नॉट अ सिंगल पर्सन जॉब, इट्स अ टीम वर्क, टीम एफर्ट विच परफॉर्म नाइसली। सर टू बिगिन विथ, हमारा
मध्य प्रदेश जैसे कि नाम में ही मध्य है, चारों तरफ अनेक राज्यों से जुड़ा हुआ है, कुछ कुछ वही हमारे रीवा पर भी लागू होता है सर। 6240 वर्ग किलोमीटर का सर क्षेत्रफल है रीवा में। गिने चुने बड़े जिलों में से सर एक है। हालांकि महानगरों की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन महानगरों की जनसंख्या का हमको सौगात मिली हुई है। पांचवा ऐसा जिला है मध्य प्रदेश का सर जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। टारगेट के हिसाब से भी हमको वो दिया जाता है। 2719 सर हमारे गांव हैं, 9 ब्लॉक हैं, 1 शहरी क्षेत्र है। इस तरह से सर ये हमारा 11 ब्लॉक, 2719 गांव और 6240 वर्ग किलोमीटर का रीवा जिला है, जिसकी पॉपुलेशन, जो टारगेट पॉपुलेशन सर हमको दी गई थी वो लगभग 28,56,000 दी गई थी। इस 28,56,000 पॉपुलेशन में से मैक्सिमम पॉपुलेशन रूरल है सर। करीब करीब 3 लाख पॉपुलेशन हमारी अर्बन है। नगर निगम एक क्षेत्र है, बाकी नगर पालिकाएं हैं 10 जगह 12 जगह, उनको मिला के लगभग 3 लाख अर्बन पॉपुलेशन है और शेष हमारी रूरल पॉपुलेशन है। बहुत बड़े बड़े चैलेंज थे सर, जैसे पहला चैलेंज जो आपने जिसका नाम लिया कि वैक्सीन डिलीवरी, कैसे टाइमली वैक्सीन डिलीवर करना है। जो रीजनल स्टोर से हमको मिलता था जबलपुर से फिर हमारा रीजनल स्टोर रीवा में आता था, रीवा से डिस्ट्रिक्ट स्टोर को मिलना है, डिस्ट्रिक्ट स्टोर से फिर ब्लॉक स्टोर्स तक भेजना, सारे फोकल पॉइंट तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। जो हमारा नियरेस्ट फोकल पॉइंट है सर वो 1 किलोमीटर से भी कम पर है, और जो हमारा फारदेस्ट फोकल पॉइंट है सर वो 120 किलोमीटर पे है। ये डिस्टेंस हमको एक दिन में कवर करना पड़ती थी, विद इन अ मैटर ऑफ आवर्स। सबसे बड़ा चैलेंज ये था, वो भी इतनी कड़कती ठंड में, जबकि यहाँ का टेम्परेचर जो है 2 डिग्री से भी नीचे ड्रॉप होता है। साथ ही कई हमारे जो ब्लॉक्स हैं उन ब्लॉक्स तक जाने के लिए हमको बहुत सारे पहाड़ों को पार करके जाना पड़ता है। उन पहाड़ों पर ठंड के दिनों में इतना कोहरा रहता है कि नाइट ट्रेवल इज ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल। फिर भी हमारे ड्राइवर्स ने अपने आप को, अपनी जान को, अपने परिवार को जोखिम में डाल के वो उसको लिया और उसको पहुंचाया। ओवरनाइट सर हम लोगों ने काम किया है। ऑलमोस्ट अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रखना चाहूंगा सर कि मेरी तो स्लीप साइकिल ही रीसेट हो गई है। पहले जब रात को 11 बजे 12 बजे सो जाया करता था, अब मैं दिन में 3 बजे सोने लग गया हूँ। तो इट्स अ साइड इफेक्ट ऑफ वर्किंग सिंस वेरी लॉन्ग 1 ईयर। सभी हमारे मित्रगण भी हैं, सबको याद है कि वो दिन नजदीक आने वाला है, 16 जनवरी। जब 16 जनवरी को हम लोगों ने शुरू किया था सर, 15 जनवरी को सर रात 2 बजे तक बैठ के हमारी टीम ने पूरे सेशन यहाँ बनाए थे। सारे मध्य प्रदेश की टीम बैठी थी। एंड दिस इज नॉट एन ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, लेकिन हमारे वीसीसीएम ने बताया कि सर रीवा जिला आपका लगभग पहला जिला था जिसने कोविन पोर्टल पर सेशन क्रिएट किया था। तो क्रेडिट गोज टू माय वीसीसीएम। पॉपुलेशन सर, जैसे कि आपसे मैंने कहा, बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन, जहां एक तरफ अर्बन पॉपुलेशन है, दूसरी तरफ रूरल पॉपुलेशन है। लिटरेसी रेट भी हमारा काफी अच्छा नहीं है। तो चैलेंजेस हमारे सामने सर 2 थे। एक तो वैक्सीन टाइमली प्राप्त करना, उसको टाइमली डिलीवर करना, और टाइमली लोगों तक पहुंच जाए और उनको लग जाए। तो पहला पार्ट तो सर हम लोगों के हाथ में था, वैक्सीन उसको टाइम से ले लेना, टाइम से पहुंचा देना। इवन जो हमारे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स थे, जो हमारे कोल्ड चेन हैंडलर्स हैं, जो हमारे अल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी पर्सन्स हैं, और जो हमारी ग्रास रूट वर्कर हैं सर, एएनएम्स हैं, जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो हमारी आशा कार्यकर्ता हैं, और उनका जो सपोर्ट सिस्टम है, आशा के साथ जो सपोर्ट सिस्टम है, आशा सहयोगिनी का, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ उसका सपोर्ट सिस्टम है, उसकी सहयोगिनी का, और हमारी एएनएम के साथ जो उसके गांव के संपर्क का सपोर्ट सिस्टम है, जो चूंकि इतने सालों से गांव में काम कर रही है, निश्चित रूप से काफी लोगों से उसकी जान पहचान है,
वहाँ के गांव के जो प्रमुख लोग हैं जो उसका साथ देते हैं हर काम में, जो वहाँ के लोकल टीचर्स हैं, लोकल जो उनके मेंबर्स हैं, जो गांव के प्रमुख लोग हैं, इवन जो छोटे छोटे दुकान वाले हैं, उनका बहुत बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम हमको था। और उससे बड़ा सर सपोर्ट सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का। द कमांडर इन चीफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रीवा, द कमांडर इन चीफ सेकंड सीईओ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा, then the main commander, our chief medical and health officer, and his whole of the team. This team performed very nicely. जहां तक मॉनिटरिंग का सवाल है सर, तो मैं अपना अनुभव ये बताता हूं कि आई हैव नॉट सीन सच अ गुड कलेक्टर हु मॉनिटर्ड होल ऑफ द प्रोग्राम सो नाइसली। उनको दिन में हमको 3 से 4 बार सर रिपोर्ट करना पड़ती थी। सुबह उनको ये रिपोर्ट करना पड़ती है कि आज आपने कहाँ कहाँ सेशन प्लान किए हैं, क्या आपका टारगेट बेनिफिशियरी है और आप ये कैसे करोगे। फिर उसके बाद सर वो आवरली फीडबैक देते हैं कि आपका काम कैसा चल रहा है। नाइट में सर हमको उनको पूरा फीडबैक देना पड़ता है, क्या आपने दिन भर क्या परफॉर्म किया और उसके बाद आपके पास रिमेनिंग वैक्सीन कितनी है कल की प्लानिंग के लिए। ये नाइट में उनको प्रोग्राम के बारे में बताना पड़ता था। एक पार्ट ये हुआ सर। दूसरा पार्ट था उनका वैक्सीन अवेलेबिलिटी एंड वैक्सीन डोजेज मॉनिटरिंग। मेरे को उनको पर डे कम से कम 3 मैसेज करना पड़ते हैं, आज मेरे पास कितनी वैक्सीन है और मुझको कितनी वैक्सीन मिलने वाली है, और सेकंड डे मॉर्निंग पर ब्लॉक मैंने कितनी कितनी वैक्सीन ब्लॉक को प्रोवाइड की है। ये फीडबैक उनको देना पड़ता था। साथ में उन्होंने अपना एक अलग सपोर्ट नेटवर्क एंड रिपोर्टिंग सिस्टम खड़ा कर रखा है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के सारे ऑफिसर्स को उन्हें इन्वॉल्व कर रखा है। जो उनके एसडीएम्स हैं, जो उनके सीईओ हैं, जो उनके सीईओ जिला पंचायत हैं, जनपद पंचायत हैं, जो उनके पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, कानूनगो हैं, जो ग्राम सचिव हैं, रोजगार सहायक हैं। ये ग्रास रूट लेवल तक का उनने नेटवर्क खड़ा कर रखा है, जिसके माध्यम से सर जो हमारा सेशन प्लानिंग है, टीम मैनेजमेंट है, मोबिलाइजेशन है, इसमें हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। मोबिलाइजेशन हमको नहीं देखना पड़ा, हमारे लिए उन्होंने केवल ये छोड़ रखा था कि आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्लस आप ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन प्लस आप तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर सेशन प्लान कर दीजिए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को बता दीजिए कि हमारे सेशन कहाँ कहाँ हैं और मोबिलाइजेशन हम कराएंगे। तो ये हमको सर एक बहुत बड़ा रिलीफ भी था और बहुत बड़ा सपोर्ट भी था। कई जो सर हमारे एसडीएम्स हैं, उन्होंने तो लिमिट से बाहर जाके सपोर्ट किया। आप समझिए कई कुछ जगह जैसे शुरू में वैक्सीन क्रंच था, वैक्सीन शॉर्टेज था, तो कुछ तो हमारे जो एसडीएम्स हैं उन्होंने एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक खुद अपनी गाड़ी से खुद वैक्सीन कैरियर में वैक्सीन लेकर के और इधर से उधर मोबिलाइज की कि वैक्सीन का हमारा फुल यूटिलाइजेशन हो सके, वेस्टेज ना हो सके और बेनिफिशरीज को वो वैक्सीनेशन टाइमली और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मिल जाए। फिर रेगुलर मॉनिटरिंग से हर जो हमारी मंडे की टीएल होती है उसमें हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं, प्लस जितना भी हमारा स्वास्थ्य विभाग का अमला है और उनका अमला है, ये उनको फीडबैक देता है वैक्सीनेशन के लिए कि पूरे वीक कैसा आपका प्रोग्राम चला, अगले वीक आपको क्या प्रोग्राम करना है। प्लस जितने उनके दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं वो रेगुलरली उनको प्रेरित करते रहते हैं कि आपको वैक्सीनेशन में हेल्प करना है, सहयोग करना है। और उनको जो भी हम फीडबैक देते हैं सर कि हमको सर एडमिनिस्ट्रेशन से हेल्प चाहिए या स्कूल से हेल्प चाहिए या नगर निगम से हेल्प चाहिए, नगर पंचायत से हेल्प चाहिए, उसके माध्यम से सर वो टीएल में उनको सबको एड्रेस करते हैं और स्ट्रिक्टली उनको कहते हैं कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है, आपको करना है या नहीं करना है, नो एक्सक्यूज। स्कूल के लिए भी उन्होंने सर सेम प्लान अडॉप्ट किया था। सारे प्रिंसिपल्स की सर उन्होंने मीटिंग ली, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, सबकी मीटिंग लेके उन्होंने
ये कहा कि आप एक एक बच्चे को सेशन वैक्सीनेशन कराएंगे और आप रिकॉर्ड खुद रखेंगे कितने बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ, और आप फीडबैक देंगे हमको पर डे कि आपके यहाँ कितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं, कितने बच्चों को आपने वैक्सीनेशन कराया, कितने बच्चे आपके ड्यू छूट गए और उनको आप कब बुला रहे हैं। ये फीडबैक आप देंगे, जिससे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का वैक्सीनेशन का टीम है ये आपके स्कूल में टीम भेज करके दे सके। इसके अलावा सर उन्होंने सेपरेट सेशंस ऑर्गेनाइज करवाए, जैसे नगर निगम के लिए नगर निगम में अलग सेशन रखवाया, कलेक्ट्रेट कार्यालय में सर अलग सेशन रखवाया, जैसे आज भी चल रहा है हमारा जो प्रिकॉशन डोज का सेशन है वो रखवाया। पुलिस लाइन में उन्होंने अलग सेशन लगवाया, और पंचायत में सर उन्होंने अलग सेशन लगवाया। फिर बड़े बड़े जो हमारे सर ये संस्थान हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनीज हैं, बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, उन्होंने वहाँ अलग सेशन अरेंज करवाए। ये उन्होंने देखा कि कौन व्यक्ति कहाँ पर ज्यादा आसानी से ज्यादा अच्छे से मोबिलाइज होकर के पहुंच सकता है, और वहां उन्होंने सर सेशन अरेंज कराए। जो डिस्ट्रिक्ट की सर हमारी सपोर्ट कम्युनिटीज हैं, अलग अलग जो हमारे धर्मगुरु हैं, जो धार्मिक संप्रदाय हैं, उनको उन्होंने मोटिवेट किया कि आप अपने यहाँ सेशन लगवाइए। जैसे गुरुद्वारे में सेशन रखवाए, मस्जिद में सेशन रखवाए, चर्च में सेशन रखवाए, तो वहां पर भी उन लोगों ने आकर के सेशन लगवाए। कई जो समाज होते हैं सर, जैसे सिख समाज है, मुस्लिम समाज है, ब्राह्मण समाज है, इनके लिए उन्होंने इनको खुद कहा कि आप बताइए आपको कहाँ सेशन चाहिए, हम वहाँ सेशन लगाएंगे, जिससे आपके लोग सामाजिक रूप से वहाँ इकट्ठा होकर के और वैक्सीनेशन करवा सकें। अलग जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं सर, अलग अलग ऑफिसेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, क्लिनिक्स हैं, उनको उन्होंने लिबर्टी दी कि आप बताइए आप कहाँ सेशन रखवाना चाहेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को उन्होंने लिबर्टी दी कि आप कहाँ सेशन रखवाना चाहेंगे। शुरू में तो कुछ पेमेंट वाला था, लेकिन बाद में जब टोटल फ्री वैक्सीनेशन हो गया तो उन्होंने कहा कि देखिए हम आपके हॉस्पिटल में तो सीधे नहीं लगाएंगे, पर आप नियर बाई कोई प्लेस हमको बता दें जहां पर आपका स्टाफ आकर के वैक्सीनेशन करवा सके। इसके अलावा जब सेकेंड सर जब हमारे काफी सारे लोग वैक्सीनेट हो गए तो हमने सर मोबाइल टीम का प्लान उसको उतारा कि चूंकि अब जगह ज्यादा है, लोग कम है, हमारा मैन पावर रिसोर्स भी कम है, तो एक ही मोबाइल टीम के माध्यम से कई कई गांव, कई कई अपने शहर के वार्ड, कई क्लिनिक्स, कई नर्सिंग होम्स ये हमने कवर किए। हमारे जैसे नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 45 वार्ड है, हमने यहाँ 15 टीमें बना रखी हैं। तो एक टीम प्रतिदिन कम से कम 3 वार्ड में विजिट करती है। ऑलरेडी वहाँ की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उसको इन्फॉर्मेशन रहती है कि टीम हमारे यहाँ पहले कब आएगी, दूसरे के यहाँ कब आएगी, तीसरे के यहाँ कब आएगी। तो वार्ड वार अपने बेनिफिशियरीज को मोबिलाइज करके रखते हैं और वहाँ उनका वैक्सीनेशन होता है। ये कन्वर्सेशन डॉक्टर अग्निहोत्री हम चालू रखेंगे, बट इसके बीच में हम लोग थोड़ा सुन लेते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में, बट आप फिनिश कर लीजिए। मैं जस्ट आपको ये कहना चाहता था कि सर तो इन समरी एक तो ये था, और इससे बड़ी सर जो जिसको कहना चाहिए कि पर्सन बिहाइंड द कर्टेन, वो हमारे सर थे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला पंचायत श्री स्वप्निल वानखेड़े। ही इज एन एस्ट्यूट एंड एक्सेलेंट प्लानर। उन्होंने जो प्लानिंग उन्होंने सर इंट्रोड्यूस की, आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे पूरे न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरा हमारा भारत देश उस प्लानिंग को अडॉप्ट कर रहा है। जो वार्ड वार प्लानिंग है, ग्राम वार प्लानिंग है, पंचायत वार प्लानिंग है, ये हमने सर रीवा से शुरू की थी। शुरुआत ही सर हमने इसको अडॉप्ट किया था, और ये उनके दिमाग की उपज थी जिसको सभी लोगों ने बाद में अडॉप्ट किया। इसके अलावा सर वो रेगुलर वीसी लेते हैं, सारे हेल्थ डिपार्टमेंट को जोड़ते हैं, एजुकेशन को जोड़ते हैं, महिला बाल विकास को जोड़ते हैं, और जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है ग्रास रूट लेवल तक का। तो प्रोग्राम के डेज में सर कम से कम वीक में 3 बार वो वीसी लेते हैं। शाम को 3 दिन पहले 1 घंटे पूरा रिव्यू करते हैं, 1 दिन पहले पूरा रिव्यू करते हैं, और जिस दिन प्रोग्राम होता है सर वो टोटल पूरा फीडबैक लेते हैं कि आपने क्या कार्य किया। एंड नॉट ओनली दिस सर, वो अच्छा काम करने वाले को अप्रिशिएट करते हैं और इसका रिवर्स भी करते हैं सर। Wonderful. Thank you, Dr. Agnihotri.
थैंक यू सर, थैंक आपसे यू। एंड आपका बात सुन के, आपसे मिलके, वर्चुअली मिला हमने, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कभी सामने भी मिल लेंगे हम लोग, बट आपका टीम से मिलके भी मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू एंड योर टीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी Now, मच सर, thank you, thank you. Now I would like to move to Shivpuri district, and we have with us Dr. Sanjay Rishishwar. डॉक्टर संजय, एक यूनिक चीज जो हमें सुनने को आया आपके शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, कि यहाँ पे आपने कुछ सेशन चलाए थे जहाँ पे इट वाज लेड बाय वोमेन ओनली, जहाँ पे महिलाएं ने ये सेशन कंप्लीटली लीड किए थे। एंड इसके बारे में हम आपसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये सारे देश के लिए एंड नॉट ओनली देश बट वर्ल्ड के लिए भी एक अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। एंड सेकेंड जो हम सुनना चाहते हैं कि ये हम सुनने को हमें आए हैं, बट आपसे विस्तारित सुनेंगे कि आपका जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनका कुछ यूनिक तरीके से आप मोटिवेट करते हैं, तो कैसे आप उनको मोटिवेटेड रखते हैं, इन दोनों चीज के बारे में हम आपसे सुनना चाहते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर ईश्वर। सर, शिवपुरी जिले की एक विशेषता बताऊं मैं आपको कि मैं वहां गया था तो बताया था कि जो पुराने टाइम में चंदेरी साउथ एंड नॉर्थ का दरवाजा था, लेकिन मॉडर्न इंडिया में आज जो साउथ और नॉर्थ का दरवाजा है वो शिवपुरी है। जितना भी ट्रैफिक गया तो मैंने देखा कि जिस तरह मेरा शिवपुरी के हाईवे से निकला और वो झांसी होकर निकला, गुजरात से ईस्ट टू वेस्ट गया और वेस्ट टू ईस्ट गया, वो शिवपुरी है। तो शिवपुरी में सबसे ज्यादा मार आई, सब तरह के वेरिएंट थे शिवपुरी में कोविड में थे, जैसे कि तरुण गुप्ता ने बताया। और मुझे खूब याद है कि टीका उत्सव से जो चालू किया, तो टीका उत्सव में हमने एकदम सेस बढ़ाए और टारगेट लिया, तो उसका एक जो कहते हैं कि कोरेसिव इफेक्ट या बाउंस बैक इफेक्ट ये आया कि उससे AFI हुए, तो लोगों में ये भ्रम फैल गया कि ये इस तरह की वैक्सीन की वजह से ये सुनी, तो लोग वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं थे। जब ये मई में से डाउनफॉल हुआ, तो ये बहुत बड़ी चीज थी। और ये चैलेंजेस थे एडमिनिस्ट्रेशन पे, मेरे लिए भी, हमारी टीम के लिए भी। तो फिर हम लोगों ने जो स्ट्रेटजी बनाई और शामिल किया, तो एक तो महिलाओं के लिए पिंक बूथ बनाए थे, सिर्फ ओनली फॉर पिंक बूथ। जिस तरह की इलेक्शन पैटर्न पे चले हम लोग, क्योंकि जो गाइडलाइन लिखा था इलेक्शन पैटर्न, तो हमने कहा महिला मतलब फ्रेंडली रहेंगे, वुमेन फ्रेंडली बूथ रहेंगे अर्बन एरियाज में। एक्चुअली दो तरह की एजेंसी थी, अर्बन की अलग थी और रूरल की अलग थी। अर्बन में यह था कि लोग कोई हॉस्पिटल में नहीं आना चाहता था, तो हमने कहा हॉस्पिटल में हम सेशन बनाएंगे ही नहीं। हमने कहा वो आपकी जहां मर्जी है वहां बनाएंगे। मतलब पब्लिक डिमांड पे थी कि अगर आप कोई होटल में चाहते तो बहुत बड़े होटल्स बंद थे सब, तो होटल्स में बना दिया। कोई बोला कि गार्डन में बना दिया, महिला बाल विकास के सेंटर में तो पिंक बूथ बनाए। दूसरा क्या था कि हमारे यहाँ जो माननीय मंत्री महोदय जो यशोधरा राजे सिंधिया महाराज साहब, तो उनका बड़ा था, उन्होंने अपना पहला वैक्सीन लगाया और पोस्टर लगवाए हमने सब जगह। और दूसरा था वहाँ एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो फीमेल्स का है, तो उनके भी फिर हमने वीडियोस चलवाए, सबके फीमेल्स के ही, डॉक्टर्स, फीमेल डॉक्टर्स, फीमेल पॉलिटिशियन लीडर। तो हर गांव में, जब रूरल में हमने ये किया कि जो भी सेशन चालू होता था तो हम फीमेल कोई गांव की बुजुर्ग महिला या पुरुष से ही चालू कराते थे। मेरी जो महिलाएं ज्यादा मिलती थी तो वो तैयार हो जाती थी, और साथ में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की 20-25 महिलाएं आगे आती थी, तो एक वो हेजिटेंसी दूर रहती थी। जब घर की महिला ने लगवा लिया, पुरुष उसके लड़के वो लोग कम फॉरवर्ड, तो बहुएं आना चालू नहीं। तो इस तरह तो ये किया। सामाजिक संस्थाओं से हमने कहा, हमने कोई एरिया फिक्स नहीं किया। हमने कहा अग्रवाल समाज है, जैन समाज है, वो लगाएगा। तो जिसमें कि चाचा भी आ गए, ताऊ भी आ गए, उसके बच्चे आ गए, बुआ के बच्चे आ गए, तो एक इमोशनल जन अभियान में कन्वर्ट किया और एक उत्सवी माहौल बनाया। मतलब यह था कि हमको कहीं टेंट लगाने की जरूरत नहीं थी। उल्टा ही होता था कि हम होस्ट की जगह गेस्ट हो गए थे। लोग कहते थे फेसबुक पे, भाई तू ये क्या कर रहा है, लोग तेरे बहुत माला वाला डाल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं। और वो क्या था कि जैसे वर्कर था, तो मैंने उनसे ये कहा कि आप बेशक करिए, लेकिन हमारे वर्कर को प्रमोट करें। भाई मेरे को कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, आप उन वर्कर को एक माला पहना दें, उनको कोई गिफ्ट दे दें। तो लोगों में होड़ मगी वर्कर की, सर हमको मतलब गवर्नमेंट के CVC पे नहीं रहना, हमको ये NGO के CVC पे जाना है। तो उनकी रोटेटेड ड्यूटी चेंज करते थे।
जिसको उनको कुछ गिफ्ट आर्टिकल्स मिल जाए। वो जो तो क्योंकि ऑनरेरियम तो एएनएम्स को तो है नहीं, और वही हमारी फ्रंटलाइन वर्कर थी, क्योंकि हमारे यहाँ स्कार्सिटी ऑफ हेल्थ केयर वर्कर बहुत थी। और हमारी एक जो थी एएनएम अलका श्रीवास्तव, उसने 1000 से ऊपर हाईएस्ट एमपी लगाया था। हमने कहा कि जो 5500 से ज्यादा जो टीम लगाएगी उसको हम इनाम देंगे, जो टीम लगाई। तो एक रिवार्ड सिस्टम हमने रखा। और ये था कि ये बहुत सारे जैसे पॉलिटिशियन थे तो उनको किया। एक था रूरल एरिया में क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग्स, जूम वीसी का हमने बहुत उपयोग किया, गूगल मीट और जूम वीसी। वार्ड वार जूम वीसी होती थी, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी उस जूम वीसी से जुड़ते थे यूट्यूब से, और हमारे कलेक्टर सर भी वार्ड वाइज क्राइसिस मैनेजमेंट। उसमें क्या पॉलिटिशियंस थे, एनजीओ के सदस्य थे, तो वो एक जो लीडर्स थे वो कम होके आए सोशल में, जो लोकल लीडर्स थे तो वो लोग इसको कम फॉरवर्ड लेके गए। तो ये था। दूसरा मैं आपको एक बहुत एक्सपीरियंस बनाऊंगा। 27 सितंबर बड़ा हिस्टोरिकल डे था शुक्री के लिए, कि हमको 60,000 का वो टारगेट मिला था, और पूरे दिन पानी बरस रहा था, और ये कहा कि और वैक्सीन खत्म करनी थी। तो हमने ये किया कि पानी बरसते में समूह ने वैक्सीन लगवाई और 95,000 लगाई। जब मैं 60,000 के ऊपर 80 पे पहुंचा तो एमडी मैडम ने फोन किया कि कांग्रेचुलेशन डॉक्टर ऋषि सर, लेकिन इस डाटा को आप ऑनलाइन कराएं। हमने ये स्ट्रेटजी बनाई कि डाटा ऑनलाइन में हमारा नेक टू नेक चलता था फिजिकली, और जो ऑनलाइन था ऑफलाइन वो बिल्कुल बड़ा चलता। हमने कहा और भीड़ होती थी, लोग लौटे ना, तो डबल कोविन पोर्टल पे एंट्री कराना चालू कर दी, जिससे कि लोग वेट ना करें। दूसरा ये था कि फीमेल्स को फर्स्ट कम किया कि फीमेल्स आई है तो उनको आप पहले प्रेफर करें, जब मोटिवेशन बन गया। दूसरा ये था कि जब इसको सारे कलेक्टर सर ने क्या किया था, पूरे डिस्ट्रिक्ट को 50 क्लस्टर में बांट दिया था। तो उनको जाना है जैसे हेल्थ केयर वर्कर को, तो जो नोडल की गाड़ी जा रही है वो नोडल की गाड़ी हेल्थ केयर वर्कर को और वैक्सीन को लेके ही सीबीसी पे जाएगी। तो सबसे ज्यादा दिक्कत ये है वर्कर को एंड एरिया तक पहुंचने की। दूसरा एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि टीम को कॉफी, चाय और जो फूड था वो हमने उनको प्रोवाइड कराया। हमने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, बोले मैं कुछ नहीं चाहता, मेरे सिर्फ एक डिमांड है कि टीम को भोजन मिलना चाहिए। क्योंकि दिक्कत ये होती है कि रूरल एरिया में और अगर फीमेल अगर घर से बाहर निकल रही है, और हम लोग सेशन एक्चुअली क्योंकि इलेक्शन मोड में कर रहे थे, तो 7 बजे सेशन चालू होता था, तो बेचारी वो पहली फैमिली को भी भोजन बना के नहीं आई। टीम्स को फूड और उसके आने जाने की समस्या को बिल्कुल हमने फ्री हैंड किया। दूसरा ये था कि हमारे जो टारगेट अचीवमेंट में करके हमने सेक्टर्स, जो हमारे सेक्टर मेडिकल ऑफिसर्स थे, कम से कम 80 सेक्टर मेडिकल ऑफिसर, सबको हमने गाड़ी प्रोवाइड करी। और एक जूम वीसी का हमने एक पैकेज खरीद लिया है 5000, तो 500 सीवीसी को हम एक साथ जोड़ सकते हैं। तो वो जूम वीसी हमको हम ऑन कर लेते कि सुबह 7 बजे कि आप अपनी अपनी लोकेशन बनाइए, आपकी कितनी कितनी टीमें पहुंची, वैक्सीन पहुंची कि नहीं पहुंची। और फिर उस पर यह कि जब इससे रिपोर्ट आती थी, फिर 12 बजे करते थे और वो पूछते थे भाई वहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर वहाँ टारगेट नहीं है एजेंसी, तो जहाँ पर लोग पूरे हो गए तो उसको आप प्लान भी तैयार करते थे और उसको है ना टीम को गाड़ी से शिफ्ट कर देते थे। तो वो हमने डिले को दूर कर दिया। और ये एक बहुत बड़ा मतलब ये मॉनिटरिंग का बहुत अच्छा सिस्टम था कि अभी भी मतलब आज भी हम चल रहे थे तो यही करते हैं कि कहीं भी घूम रहे हैं। मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी एक होटल में अभी मैं, मेरा लंच रेडी है, लेकिन आपसे मेरी बात करनी है तो यहाँ आके बैठ गए। तो ये एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन का साधन है। इसको हमने हमारे टेक्निकल टेक्निक्स को और टेक्नोलॉजी को अपने प्रोग्राम में लेके आए, और जूम इसी को हमने एक उससे जोड़ दिया कि हम एक गांव के इंटीरियर में भी हैं। दूसरा ये कि कोई एएफआई होता है तो फिर वो पेशेंट हमारे रडार पर रहता है। वो जो व्हीकल है वो व्हीकल से तुरंत, क्योंकि जो रिस्पांस टाइम है 108 को, उसको भी हमने खत्म करके उसको तुरंत उसको पिकअप कर लेते हैं और पेशेंट को डायरेक्ट जूम इसी से वीडियो पे ले लेते हैं, उसको जितनी परेशानी होती है वो। दूसरा एक और था कॉल सेंटर। हमने 100 कॉलर लगाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सारी ड्यू लिस्ट लगाई और उससे कॉलिंग करना चालू करी। वही, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि लोग आ नहीं रहे थे सेकंड डोज के लिए, तो कॉलिंग चालू हुई और ब्लॉक लेवल पे मैनेज नहीं पा। दूसरे गूगल शीट बना दी थी हमने, जितने भी नाम थे उसको पुट कर दिए और
उसमें एक बड़ा दिक्कत ये था कि लोग शहर में डिमांड थी तो लोग रूरल एरिया के अर्बन एरिया में आ गए, तो उनका एड्रेस भी हमने चेकआउट कर दिया। तो भाई आपने वैक्सीन लगवाई नहीं लगवाई, तो वो उनका एड्रेस, तो इस सॉफ्टवेयर में एक ही दिक्कत है कि जो बंदा लगवाया था उसका मोबाइल तो रहता है, लेकिन वो कहाँ का रहने वाला है ये पता नहीं पड़ता। तो उस समस्या का भी हमने ये जो अपनी इस तरह की ये सॉफ्टवेयर है, तो उसमें अपना एक तरह का टेक्नोलॉजी यूज करी। हमारे पास गूगल शीट है और गूगल शीट में हमने कॉलिंग सिस्टम से उनके सबके एड्रेस दे रखे हैं भाई, और फिर उनको मेरा मोबाइल कोई बंद नहीं होता, अगर कॉल आएगा तो पिकअप करेंगे, कॉल बैक करेंगे। तो पेशेंट तो ये है कि भाई आपके सारे मोबाइल्स और सारे फेसबुक पे, मेरे फेसबुक पे, कलेक्टर सर के फेसबुक पे हम सारे सेशन और टीम के जो मोबाइल नंबर है वो भी रहते हैं। तो ग्रामीण को ये पता रहता है कि अगर और जिसको वैक्सीन लग जाती है तो ये उनका मोबाइल पहुंच जाता है, तो प्रॉब्लम होगी तो वो मोबाइल से वो बात कर सकते हैं। तो इस तरह की ये जो चैलेंजेस थे वैक्सीन मैनेजमेंट का, मॉनिटरिंग सुपरविजन का, और ये सब डॉक्यूमेंट वर्कर करिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो आपने दो चीज बताया, आपका इंसेंटिव्स कैसे आप हेल्थ वर्कर्स को माने मोटिवेट रखते हैं, ये जो सिंपल चीज अब बताएं कि सबके लिए आपने कुछ टिफिन के अरेंज किए हैं, सबके लिए जी आपने आपका कुछ मतलब एक टाइप ऑफ सर। रिकॉग्निशन किए थे, यही बहुत बड़ा जी होता सर। है। यू नो मनी इज सर इम्पोर्टेंट, बट मनी से भी ज्यादा एक रिकॉग्निशन इम्पोर्टेंट सर होती है। वही हो। ये अभी कल रिकॉग्निशन सबसे एक्चुअली इम्पोर्टेंट है। यही सब चालू कर रहे हैं अभी मैं, क्योंकि सबको प्रमाण पत्र देने जा रहे हैं, रिकॉग्निशन मैंने बात किया। आखिरी में वो बहुत आदमी ये दिखाता है कि मेरे पास कितने मेडल्स हैं, और कितने एग्जैक्टली किसी से मिलने जाओ तो दिखाता है कि मेरे एग्जैक्टली पास कितनी शील्ड मिली। तो कल एग्जैक्टली हम एक शाम कर रहे हैं वैक्सीनेशन, एक शाम वैक्सीनेशन के नाम हर ब्लॉक में प्रोग्राम करेंगे, कलेक्टर सर उनको एप्रिसिएशन देंगे, और जो बहुत बढ़िया। कंटेंजेंसी में राशि है वो उनको चेक कलेक्टर सर से डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे, क्योंकि 400 लोग लगे हुए हैं एएनएम, और उनका रिकग्निशन बहुत जरूरी है, नहीं नहीं, ये क्योंकि उन डॉक्यूमेंट लोगों ने करिए, शेयर करिए, जी सो दैट अदर्स जी कैन आल्सो लर्न फ्रॉम यू, और आपसे जी जी सीखिए, एंड दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी हम जी कर सर। सकते हैं। तो तो क्या मैं है आप कि हाँ बोलिए जी सर, बोलिए बोलिए। बस सर मैं तो बस इसको समअप कर रहा हूँ। और एक बड़ा हमने स्टिकर लगाया, जिसके घर में टीके लगे थे उसके घर पे स्टिकर लगाया, गर्व से कहो मैं सुरक्षित, मेरा शहर सुरक्षित। तो इज ए प्राउड फीलिंग कि मतलब वो वंडरफुल। फैमिली है। दूसरा ये कि जिसके एक्चुअली पल्स पोलियो उठाया था, जिसके घर में वैक्सीन नहीं लगी तो वो वहां रेड लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। क्रॉस तो लगाते सब थे। एक आसपास के लोग बड़े उसको एक्स एक वैसी निगाह से देखते थे कि भाई तुमने वैक्सीन लगाया, हम तो चले आए एक बार, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी भाई वैक्सीन लगवा लो, आपके वैक्सीन किसको नहीं लगी। तो इस तरह का ये सिस्टम, डिमार्केशन सिस्टम हमने चालू किया। और सोशल मीडिया का बहुत जो किया, वीडियोस डलवाए हमने सबके, वेरी खासकर गुड। डॉक्टर्स के, बच्चों बच्चों पीडियाट्रिशियन के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के वो वीडियो फेसबुक पर सब जगह कि भाई आपने बच्चों को लगवाइए, फीमेल्स को लगवाइए। प्रेग्नेंट वुमेन में भी हमने ये किया कि जो फेमस लेडी डॉक्टर हैं, प्राइवेट लेडी डॉक्टर्स हैं, उनके वीडियोस क्लिपिंग करा के सब जगह वायरल करवाए कि भाई कोई हेजिटेंसी नहीं है। और इस तरह हम ये सारी वैक्सीन एजेंसी, वैक्सीन मॉनिटरिंग, सुपरविजन और एडमिनिस्ट्रेटिव इशू से और अभी बच्चों के लिए हमने एक नया आइडिया सोचा है। हाउस टूर्स आ रहे हैं, हमने कहा स्कूल में तो जितने आने थे आ गए, वहां भी फेक डाटा है। अब एक नई चीज हो गई है कि वैक्सीनेशन से वैलिडेशन हो सकता है, आदमी राशन 2 बार ले सकता है, वो ठीक बुक्स ले ठीक सकता है। तो हमने समग्र आईडी की लिस्ट ले ली है, उससे बच्चों का मतलब 15 to 18 ईयर्स है ना, समग्र आईडी में हर पंचायत वार लिस्ट है। और उसी तरह हमारे वोटिंग लिस्ट में टिक लगा रहे हैं भाई किस गांव में कितने कितने हाउस होल्ड, जाइए उसको क्लिक कीजिए, बताइए कि ये लोग कहाँ हैं। तो ठीक वो ठीक ठीक। बिल्कुल एक एक चीज को पकड़ रहे हैं, उनको इतनी मतलब स्पेसिफिक मॉनिटरिंग हो गई है कि टीम के पास लिस्ट है समग्र आईडी की बच्चों में। तो बहुत बढ़िया बहुत। आज भी हम थर्ड नंबर पे है, एकदम लास्ट 35 पे था, और पिछले 4-3 दिन में जब मेहनत करी तो हम थर्ड नंबर पे आ गए। बहुत और बहुत इसी अभिनंदन, तरह बहुत बहुत बधाई। 1 to 1 पकड़ के मतलब हाँ कड़सा बहुत ज्यादा हुआ है। कम से कम दिन में मॉर्निंग में सुबह से लेकर शाम तक मैं और मेरे सीएम साहब हैं, और वो भी बेचारे मेनी जिम्मेदारी ले उनका ही कॉन्ग्रेचुलेशन, बड़ा। मेनी तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर बस मैं इतना ही समाप्त करूंगा। Yes, we'll come back to you. थैंक यू। Thank you. ओके। So, last but not the least, I wanted to, invite Dr. Rahul. हम सब लोग इंतजार कर रहे थे आपको सुनने के लिए। आप जो एक डिस्ट्रिक्ट संभालते हैं, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, 80% पॉपुलेशन, कैसे आपने वहाँ पे प्रोग्राम किए, आपका वहाँ का एक्सपीरियंस क्या है, ये हम आपसे सुनना चाहते हैं।
Over to you, Dr. Rahul. नमस्कार सर और मेरे साथी स्पीकर्स को भी नमस्कार। जैसा कि सर ने बताया कि झाबुआ जिला एक आदिवासी जिला है और ये मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र में, जहां पर गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमाएं लगती है, पूर्णतः ये जिला ट्राइबल्स में 87% को सर कवर करता है, जिसमें भील, भिलाला, पटेलिया जाति के हमारे आदिवासी भाई बहन रहते हैं। और ट्राइबल होने के साथ ही साथ ये जिला महिला साक्षरता में भी निचले 3 पायदानों में मध्य प्रदेश में शामिल है, जहां पर इन्हें इतनी अधिक जागरूकता की कमी है कि ये स्वयं आगे चलकर खुद की स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर लें, इतना इन्हें आइडिया नहीं है। झाबुआ जिला में मैं जिला टीकाकरण अधिकारी के रूप में पिछले 2012 से काम कर रहा हूं और मैं स्वयं भी इसी जिले से बिलोंग करता हूं और मैं खुद भी यहीं की लोकल ट्राइब्स से बिलोंग करता हूं। तो मेरे लिए यहाँ के लोगों को समझना में चुनौती तो नहीं थी, लेकिन यहाँ के लोगों का खुद का ही जीना, रहन सहन करना, अपनी आजीविका के लिए दौड़ धूप करना, ये अपने आप में चैलेंज है। जिस प्रकार से मैं मेरे साथी लोगों की बातें सुन पा रहा था, जिसमें सभी ने ये बताया कि किस तरह से वैक्सीन को प्राप्त करने के लिए मारामारी हो रही थी, वैक्सीन की शॉर्टेज थी और लोग लंबी कतारों में लगते थे और इन्हें टीके लगाने में कठिनाइयां होती थी। झाबुआ में इसका उल्टा होता था। हम सत्रों पे बैठते थे, लोगों का इंतजार करते थे कि आप आइए, टीका लगवाइए, पर प्रारंभिक दिनों में कोई हमारी आम जनता टीका लगाने नहीं आती थी। सर्वप्रथम 16 जनवरी को जब हेल्थ केयर वर्कर का वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ, झाबुआ प्रथम 5 जिलों में शामिल था जिसने अपने हेल्थ केयर वर्कर का टीकाकरण कर लिया था। इसके अतिरिक्त फ्रंटलाइन वर्कर का जब 8 फरवरी को प्रारंभ हुआ, उसमें भी झाबुआ अग्रणी रहा। लेकिन जैसे ही 1 मार्च को पूरे भारत देश में एक साथ आम जनता के लिए ओपन किया गया, जिसमें 60+ के समस्त लोग और 45 to 59 ईयर्स के कोमॉर्बिड लोगों का प्रारंभ हुआ, हमारे अधिकांश सेशन सुने रहते थे, जहां पर कभी कभी ऐसी स्थिति निर्मित होती थी कि एक वायल तक भी उपयोग नहीं हो पाता था और सारे वायल रिटर्न फोकल पॉइंट पर आया करते थे। और यह परिस्थिति इसलिए निर्मित हुई कि मार्च अप्रैल में कोविड-19 की सेकंड शहर अपितु ग्राम भी से हलाकाल थे, परेशान थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और उसी दौरान हमारा टीकाकरण में भी प्रगति निरंतर बढ़ रही थी। झाबुआ, जहां पर जागरूकता की अत्यधिक कमी है, यहाँ के ग्रामीणों ने इसे इस तरीके से स्वीकार किया कि शायद हम टीका लगा रहे हैं, इस वजह से हमको ये बुखार आ रहा है, हमको ये बीमारी आ रही है, और वे अपने आप को इससे दूर करते चले जाने लगे। हमारी टीम पहुंचती थी और उन्हें देखते ही लोग पलायन कर जाते थे, अपने घरों से दूर होने लगते थे, टीमों को अपने पास में नहीं आने देना चाहते थे। उनके साथ में कई गाली गलौज होती थी, लड़ाई झगड़े की नौबत आती थी, कई दफा मारापीटी की स्थिति निर्मित होती थी कि आप हमारे इधर नहीं आएंगे, आप ये टीका लगा रहे हैं, उसकी वजह से हमारे पूरे एरिया में, हमारे पूरे गांव में, हमारे पूरे फलिया में बीमारी फैलती जा रही है। ऐसी भयावह स्थिति निर्मित हो गई थी कि टीकाकरण कर पाना अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता जा रहा था। और ऐसे ही दौर में एक और मुसीबत जिला प्रशासन पर आने लगी कि मेरे स्वयं के साथ मेरे CMHO सर, हमारे सिविल सर्जन सर और हमारे कलेक्टर सर, हम सभी
कोविड-19 की चपेट में आ गए और सभी एक एक 2-2 दिन के अंतराल में ही आए और ऑलमोस्ट 15 दिन तक कोविड-19 वैक्सीनेशन डाउन रहा। इस दरमियान हमारे बीच में नए कलेक्टर आदरणीय सोमेश मिश्रा जी आए थे, जिन्होंने कोविड-19 की वेव को संभाला, पूरा चिकित्सकीय पार्ट उन्होंने कवर किया। और इस तरीके से जब मैं खुद भी पॉजिटिव था और करीब 25 अप्रैल को मैं कॉल आया कलेक्टर साहब का कि डॉक्टर साहब आप कैसे हैं, कहाँ हैं? मैंने कहा सर मैं कोविड पॉजिटिव हुआ था, अभी ठीक हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप आ सकते हैं? तो मैंने कहा जी सर मैं आता हूँ। और सर के साथ फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ हमारा और उन्होंने पूरी स्थिति समझना प्रारंभ करी कि किस तरीके से झाबुआ जिले में चल रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर लोग परेशान हो गए थे। छोटा जिला होने की वजह से किसी भी प्रकार के बहुत अधिक संसाधन नहीं थे, बहुत अधिक बड़े हॉस्पिटल्स नहीं थे कि हम इस भयावहता को झेल पाते। लेकिन जो भी सीमित संसाधन थे उनके माध्यम से हमने पहले कोविड-19 की वेव को संभाला और सर के साथ में सर ने फिर मुझसे चर्चा करी और किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हमने क्लियर करे। जो जिस तरीके से जिला रीवा, जिला इंदौर, जिला शिवपुरी ने बातें करी कि लगातार वे अपने लोगों को जोड़ते जा रहे थे, इसी कड़ी में हम लोगों ने इस तरीके से गांव वालों को जोड़ने का प्रारंभ करा। क्योंकि हमारे पास में बड़ा समाज, बड़ी संसाधन युक्त कुछ भी चीजें झाबुआ जिले में नहीं है। हमारा गांव छोटे छोटे फलियों में बसता है और उनसे बातचीत करने का तरीका ट्रेडिशनली सर हमारे पास में खाटला थी। खाटला बैठक मीन्स सर कि जो सम्माननीय व्यक्ति होता है वो लोगों के बीच में जाता है, उनसे बात करता है, लोगों को उनके मन की जितनी भी भ्रांतियां रहता है उस भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करता है। हमने प्लान बनाया और इस प्लान के तहत न केवल कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार, पटवारी, शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास विभाग, जितने भी प्रकार के शासकीय विभाग है, उन लोगों ने न केवल एक बार बैठक अपितु कई सैकड़ों बैठकें खाटला बैठक के रूप में ली गई, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया कि ये जो टीका लगाया जा रहा है ये आपकी जान बचाने के लिए है। उनके मन में समस्त प्रकार की भ्रांतियों को दूर करने के प्रयास किए गए, जिसमें एक सबसे बड़ी भ्रांति आदिवासियों में ये है सर कि जब मैं स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, तो मुझे सुई क्यों चुभाई जाए? सुई तो तब लगाई जाती है जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसी को सुई लगाई जाती है। और जो सुई आप लगाते हैं ये हमारे छोटे बच्चों को लगता है या गर्भवती माता को लगता है जिसको आप टीका लगा रहे हैं, ये उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। मेरी उम्र 50 साल हो गई है, 60 साल हो गई, अब मुझे क्या करना, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और ये सुई लगाना मतलब आप हमको लगा के बीमार करेंगे। हमने लगातार इन्हीं छोटी छोटी बैठकों से उनको इंटरेक्ट किया। और जो खाटला बैठक का सर महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जब कोई आगंतुक उनके पास में आता है, उनके साथ बैठता है, तो वो उनको अपना समझते हैं। धीरे धीरे वो समझने लगे कि समस्त अधिकारी और जितने भी जागरूक लोग हैं वो आपसे बात कर रहे हैं, तो शायद ये हमारे लिए कुछ भले के लिए बात कर रहे हैं। और इस तरीके से सभी को अपने एक सूत्र में बांधकर बड़े से बुजुर्ग को, युवाओं को, सबको खाटला बैठकों के माध्यम से जोड़ा गया और कुछ लोगों ने अपना टीकाकरण की जागरूकता दिखाने लगी। सर्वप्रथम 22 मार्च को मैं पहली बार 4000 से अधिक लोगों का टीकाकरण कर पाया, जो कि दूसरे जिलों की तुलना में ये बहुत नगण्य फिगर है। लेकिन हमारे झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सर ये इतिहास है कि हम पहली बार 4000 से ऊपर इन सब बैठकों के माध्यम से थोड़ा आगे आने लगे। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान के माध्यम से महाअभियान समस्त जिलों में लगाए गए। झाबुआ जिले में भी उसके लिए तैयारियां की गई और यही खाटला बैठकों के माध्यम से हमने पूरी योजना बनाई, प्रत्येक गांव फलियों को कवर किया और पहली बार सर हम 21 जून को 8000, इसके जस्ट दुगने हम लोग टीका लगा पाए। इससे एक पूरा जिला प्रशासन को एक आत्मविश्वास हुआ कि यही एक वो कड़ी है। यदि हम लगातार लोगों को इन बैठकों के माध्यम से जोड़ते चलेंगे तो आगामी दिनों में हम धीरे धीरे अपने टीके लगाने की रफ्तार बढ़ा पाएंगे और सबको सुरक्षित रख पाएंगे। एक और माइलस्टोन इसी के साथ में सर, इन्हीं घटनाओं के साथ में 10 जुलाई को पहली बार 20,000 से अधिक हमने टीके लगाए
जिसके लिए मुझे स्टेट से कॉल आया कि राहुल तुमने ऐसे आदिवासी रिमोट और जहाँ पे लोग टीके से दूर भाग रहे हैं ये कैसे कर पाया। तो सर से यही बात करी कि सर लगातार हम खाटला बैठक के माध्यम से और अन्य जो जिले जो स्ट्रेटजी अपना रहे उसका तो हम पालन कर ही रहे थे, लेकिन हमारे बीच में खाटला बैठक का एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। इसके साथ ही साथ खाटला बैठक के साथ सर हमारे बीच में मुझे एक और चुनौती आने लगी थी कि जब 5 मई को 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का टीकाकरण प्रारंभ हुआ, उस वक्त शहरी क्षेत्र के बच्चों ने तो टीका लगवाना चालू कर दिया, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के थे वो टीका लगाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके भी मन में कई भ्रांतियां आ चुकी थी कि अगर टीका लगाएंगे तो हमें लड़कों में नामर्दी वाली बात आ जाएगी, महिलाएं हैं तो वो बांझपन हो जाएगा और हमारे शारीरिक क्षमता की कमजोरी हो जाएगी, घर में कमाएगा कौन, इस तरीके की 18 से जो काफी जो वर्किंग कैपेसिटी वाले लोग रहते थे उनमें दूर जा रहे थे। और ऐसे ही जैसे ऋषि सर ने बताया, हमारे रीवा डीआईओ साहब ने बताया, पाठक जी ने, तो उनके माध्यम से हमने ये अग्निहोत्री जी के माध्यम से कि जैसे कि उनकी लाइफ स्टाइल बदल गई, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कब दिन और रात हो रही है, मैं रात में जाग रहा हूँ और अब दिन में सोना स्टार्ट कर दिया। सेम कंडीशन इधर भी थी, उनको फिर भी कम से कम गुंजाइश थी कि कुछ टीके लग रहे थे। हमारे साथ तो ये हो रहा था कि हम दिन रात परेशान हो रहे हैं और टीके ही नहीं लग रहे। ऐसे ही एक राज्य स्तरीय बैठक के बाद मैं अपने निवास पे पहुंचा और सडनली करीबन 8:30-9 बज गया था और मेरा एक छोटा बालक है 5 साल का, और जब वो रात में मेरे पास में है कि पिताजी आपको मेरे साथ खेलना है, पापा खेलना है। मैंने कहा मैं बहुत थक गया हूँ, मैं टायर्ड हूँ, मैं नहीं खेल पाऊंगा, लेकिन उसकी जिद के आगे मैं उसके साथ में 5 मिनट खेला और वहीं पे मुझे क्लिक करा कि क्या शासकीय विभाग के अंदर भी ऐसे कुछ है जो बच्चे हैं जो लोगों को, अपने माता पिताओं को, पालकों को मतलब टीकाकरण के लिए ला सकते हैं। तब हमने देखा कि हमारे पास में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है जो कि 10 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों के साथ में ये विभाग काम करता है, ये योजना काम करती है। और उनके कोऑर्डिनेटर से और उनके नोडल श्री राजाराम खन्ना जी और प्रवीण यादव जी से चर्चा करी कि ऐसा क्या है हमारे पास कि हम ग्रामीण क्षेत्रों के माता पिताओं को आगे ला सके। तो जब वेव बहुत तेज थी कोविड-19 की, तो इन्होंने ही पहले प्रश्न किया कि सर अभी तो सब जगह बहुत विकराल स्थिति हो रही है, अपने आप कोई टीका लगाने नहीं आ रहे, समझदार लोग नहीं आ रहे, इन बच्चों को कैसे करेंगे। मैंने कहा जब तक पूरा शासन आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, आप पूरा भरोसा रखें, वैक्सीन सुरक्षित है। इनके माध्यम से हमने ट्रेनिंग स्टार्ट करी, जैसा कि ऋषि सर ने बताया, जूम प्लेटफॉर्म हमारे पास में भी था। हमने समस्त जो आरकेएसके के ट्रेनर्स है उनको ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देने के बाद में उनको उनके नीचे जितने भी साथियां हैं, एक आशा कार्यकर्ता के अंदर में सर एक फीमेल साथिया होता है, एक मेल साथिया होता है, और उन्होंने लगातार उनको मोटिवेट किया, प्रेरणा दी। और सर 352 साथिया थे हमारे पास में जो 18+ के थे एज पर कोविन पोर्टल में जो एलिजिबल हो रहे थे। उसमें से समझाने के बावजूद केवल मात्र 5 साथिया मई में 28 मई को सर वैक्सीनेट हुए, लेकिन सीन उसके बाद बदलता गया। उन 5 साथियों ने अपने ही ग्रुप में टीका लगते हुए लोगों को जागरूक करा और उन 5 साथिया अपने अपने एरिया माता पिता को विश्वास बताया कि देखिए ये वैक्सीन सुरक्षित है, मैं जिंदा हूं, आप डर रहे हैं इस बात से, लेकिन आप ये देखो कि हम तो अभी मतलब हमारा जीवन शुरू ही हुआ है और हम इसको वैक्सीन ले रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने अपने काका काकी, मामा मामी, ताऊ ताई ऐसे करके लोगों को बीच में फलिए फलिए में बताया कि देखिए आप डरते इस वैक्सीन को लगाने से, देखो हम सुरक्षित हैं। और इस कड़ी में सर पूरे न केवल मध्य प्रदेश अपितु पूरे देश में 352 साथियों को हमने सबसे पहले वैक्सीनेट किया। और एक एमपी को भी नाम हुआ कि जो साथियां काम कर रही हैं 10 से 19 आयु वर्ग में और 18+ में, उन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेट हुआ और इसी प्रकार सेकंड डोज भी सबसे पहले लगाया और फुली वैक्सीनेटेड हुए। और आज के दौर में अगर वर्तमान में देखें, थैंक यू सर, आज के दौर में अगर देखें कि जब हम 15 से 18 साल का काम कर रहे हैं, तो भी आज मध्य प्रदेश में झाबुआ जिला रहा जिसने अपने 850
साथिया को जो 15 से 18 आयु वर्ग के सबसे पहला न केवल एमपी में अपितु पूरे देश में वैक्सीनेट कराया। बहुत अच्छा। तो ये जो मेरे को कड़ी मिली, ये जो साथिया की कड़ी मिली, इन्होंने हर व्यक्ति में आत्मविश्वास जगाया कि देखिए ये टीका पूर्णतः सुरक्षित है, आप जिसको डर रहे हैं, आप मन में जो भ्रांति आ गई है उस भ्रांतियों से आप बाहर निकलिए। और इस तरीके से इन छोटे बच्चों के माध्यम से और प्रशासन के पूरे सहयोग के माध्यम से खाटला बैठकों का जो अभूतपूर्व लगातार काम हुआ। इवन सर जब भारी बरसातें हो रही होती तो भी खाटला बैठकें बंद नहीं की गई। थोड़ी देर के लिए वापस पानी से बचने के लिए आते थे, वापस से लोग को गैदर करते थे और वापस से खाटला बैठकों का आयोजन होता था। इसमें न केवल कलेक्टर महोदय, साथ ही साथ में जजेस भी बीच में आए और उन्होंने भी सभी प्रकार के लीगल और जितनी भी सैद्धांतिक बातें होती थी अलग अलग क्षेत्र में जाके लोगों को जागरूक करने का प्रयास करा। तो झाबुआ जिला सर इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन में अगर बड़े बड़े फिगर की बात करें दूसरे जिलों की तुलना में तो ये मैं नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी सर एक सम्मानीय 34,000 मेरा मैक्सिमम रहा है जिसमें मैं लगा पाया हूँ एक दिन में सिंगल डे। और साथ ही साथ 2 दिन में हमने 55,000 से अधिक ग्रामीण ट्राइबल क्षेत्र में लोगों को वैक्सीनेट किया और इन कड़ियों के माध्यम से लोग समझने लगे कि हम भी आगे आ सकते हैं। और सर फिर धीरे धीरे कछुए की चाल चलते हुए झाबुआ जिले ने सभी सामूहिक प्रयासों को अंजाम देते हुए मध्य प्रदेश में 107% कार्य करते हुए अभी चौथे स्थान पर है। और इसका पूरा श्रेय मूल रूप से मैं देना चाहूंगा खाटला बैठक साथिया है, लेकिन मेरी आशा कार्यकर्ताओं को, मेरे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, हमारे CHOs को, हमारे NM को, मेरे पूरे CCH को जिन्होंने रात और दिन एक्टिव रखा, संसाधनों की कमी होने के बावजूद शासन के समस्त प्रोटोकॉल का पालन किया, रात दिन वैक्सीन छोटे छोटे तालुकाओं में पहुंचाई। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे यहाँ सर ऐसे की जो नहीं रहती सर, एक घर और दूसरे घर के बीच में कम से कम 100-150 मीटर की दूरी हो जाती है। बाकी जगह पर ऐसा होता है छोटी बस्ती रहती तो कुछ लोग वॉइस आके इकट्ठे भी हो जाते हैं। हमें आधे घंटे 1 घंटे बाद वापस सेशन में बरसात में और वर्तमान में काफी चुनौतीपूर्ण तरीके से हमने हमारे ग्रामीण भाई बहनों को बहुत बहुत टीका बधाई लगा। डॉक्टर राहुल, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपको आपका टीम को बहुत बहुत बधाई। आपका बेटा का शुभ नाम क्या है? विहान सर। विहान, विहान को हमारे तरफ से बहुत बहुत प्यार और शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया तरीका दिखाया वो आपने को, बहुत बढ़िया। सो आज हम अभी समाप्त करेंगे हमारी ये कन्वर्सेशन। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आप लोगों का ये कहानियां सुन के जो फील्ड से जुड़े हुए हैं। हम अभी कोशिश करेंगे कभी चाय टीम के साथ आप लोगों को विजिट करने के लिए, फील्ड में आप लोग कैसे काम कर रहे हैं वो देख के सीखने के लिए, क्योंकि हम जो करते हैं हम विजिट करके सीखते हैं, दूसरे स्टेट्स में जाते हैं वहाँ पे बात करते हैं इसके बारे में। सो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये समाप्त करने के पहले हाँ, कोई कुछ बोल रहे थे? सॉरी, आपका सुना ही नहीं दे रहा है डॉक्टर राहुल, आप कुछ बोल रहे हैं? जी सर, मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाह रहा था सर। इसी कड़ी में जब हम सब काम कर रहे थे तो झाबुआ में एक गांव है नरसिंह रुंडा, जिसने न केवल मध्य प्रदेश, मतलब इतनी चुनौती के बावजूद भी मध्य प्रदेश में वो पहला गांव निकला है जिसने सबसे पहले फुल्ली वैक्सीनेटेड हुआ है सर। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई। इतने डिफिकल्ट एरियाज में कहाँ, बोलिए। और इसी में इसका सत्यापन करने के लिए आदरणीय डॉक्टर संतोष शुक्ला जी इसी गांव में आए थे और उन्होंने खुद ने जाना कि ये कैसे संभव हुआ। तो उन्होंने एनर्जेटिक हमारी साथिया की टीम को ऑब्जर्व करा और सर एक विशेष व्यक्ति जो वहां पर कोटवार के रूप में काम कर रहा था, श्री अनिल पचाया, उसने लोगों को बुलाने के साथ साथ थोड़ा सा वो पढ़ा लिखा है, कॉलेज तक पहुंच गया है सर, और उसने
कोविन ऐप के माध्यम से लोगों के रजिस्ट्रेशन करके दिए, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये उस हेल्प वक्त बहुत कोविन ऐप से, इम्पोर्टेंट है। ठीक जी ठीक सर, ठीक। ऐप के बिना आपका टीका नहीं लग पाता था। हाँ, उन्होंने नहीं, नहीं। ग्रामीणों के रजिस्ट्रेशन करके दिए और बोलता था कि मैं आपका पंजीयन कर देता हूँ, आप किसी भी सत्र पे जाइएगा, आप ये बताइएगा और आपको टीका लगेगा। ये तो हेल्प इस बहुत तरीके काम से, में आता है। हाँ, जी सर, ये तो इस यूपी में तरीके भी से हम छोटे काफी छोटे, सुने हैं। ना नहीं, बोलिए बोलिए, सॉरी। जी, इसी तरीके से वो इन बच्चों के माध्यम से, और वो उनके और उन्होंने मतलब ये उन्हें सोचा नहीं था कि हमारे गांव को हम सबसे पहले कर लेंगे। बस वो एक उत्साह के साथ, उमंग के साथ कार्य करते चले, छोटे से लेके बड़े तक सबको वो जोड़ते चले, और अचानक ही एक नाम उभर कर आया कि नरसिंह बहुत मुंडा ने बढ़िया। सबसे पहले फुल्ली वैक्सीनेटेड हो गया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अभिनंदन थैंक यू, आपको। डॉक्टर गुप्ता, यू आर थैंक यू सेइंग, सर। टेलिंग समथिंग। सर हाँ, सर कुछ चीज में मतलब इतना सारे जर्नी है, कुछ कुछ छूटी जा रहा। एक जरूर टेक्नोलॉजी की बात हुई कि टेक्नोलॉजी का यूजेस हमने काफी कर पाए, सोशल मीडिया का अच्छा से यूज किया, जिसमें कि हम अवेलेबिलिटी ऑफ स्लॉट्स, क्योंकि 18 प्लस में स्लॉट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होता था, तो ये जो स्लॉट्स थे वो हम सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर देते, विद इन अ मिनट्स टेलीग्राम चैनल्स पे ये अमंग्स पब्लिक में पहुंच जाता था, और वो अवेलेबल हो जाता था लोगों के बीच में कि कहाँ कितने स्लॉट्स अवेलेबल हैं। एक और बड़ा इवेंट इंदौर के लिए रहा सर, जैसे कि हमारे जो कलेक्टर हैं डॉक्टर मनीष सिंह सर, ही वाज फर्स्ट नगर निगम कमिश्नर थे जिन्होंने फर्स्ट अचीव किया था इंदौर को फर्स्ट क्लीनेस्ट सिटी का पहला तमगा जो जिन्होंने दिलाया था। महाअभियान वैक्सीनेशन का 21 जून को हमने किया था। सर ने उसके लिए स्पेशल तैयारियां करवाई, करीब 1200 सेशंस हमने उस दिन ऑर्गेनाइज किए पूरे इंटायर डिस्ट्रिक्ट में, और उसके लिए मेरे साथ टेक्निकल टीम में डॉक्टर अंशुल हैं जिन्होंने पूरा टेक्निकल सपोर्ट पूरा किया। मेनी इसके अलावा कांग्रेचुलेशन। सर पूरी टीम एक्चुअली मतलब नॉट ए सिंगल पर्सन कैन डू, लाइक हमारी इम्यूनाइजेशन की टीम, हेल्थ की टीम, एजुकेशन की टीम ने सबने मिलके एक ये तमगा अचीव किया कि 21 महाअभियान के दिन 1200 सेशन किए, करीब 2,26,000 लोगों को वैक्सीनेट सिंगल डे में किया। दैट इज द हाईएस्ट अचीवमेंट था इंडिया का, जो एक दिन में अचीव किया था इंदौर ने। बहुत उसके बढ़िया। बाद सेम स्पिरिट सर ने कंटिन्यू की, म्युनिसिपल कमिश्नर प्रतिभा पाल मैडम की लीडरशिप में अचीव किया हमने 28 लाख का जो टारगेट था, 10 लाख से अधिक की आबादी का पहला इंदौर शहर बना इंडिया का जिसने अपना टारगेट सबसे पहले अचीव किया। तो काफी करी डिफिकल्टीज भी रही, सारे ग्रुप्स को इन्वॉल्व करते हुए हम ये अचीव कर पाए सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। सो थैंक यू डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर संजय ऋषिश्वर, डॉक्टर वसंत अग्निहोत्री. Wonderful stories from the field and very good lessons that we have learned. आपको पता है कि चाय सारे डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, और ये डॉक्यूमेंटेशन जो हो रहा है चाय और आईआईटी दिल्ली के पार्टनरशिप में, हम गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश से भी बात कर रहे हैं कि कैसे ये सारे देश में फैला जाए। आप लोगों का ये जो काम है, आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है, जो लेसन्स आपने सबको सिखा सकते हैं। जब पोलियो कैंपेन चल रहा था, तब पोलियो कैंपेन में एक बार पूछा गया था कि व्हाट आर दी पिलर्स ऑन व्हिच अ कैंपेन शुड बी कंडक्टेड। तो एक मेडिकल ऑफिसर फ्रॉम अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन बांग्लादेश had said that we need to keep remember 4 M's. एंड आज मैं जब बार बार आप लोगों को सुन रहा था, आपका सबका अलग अलग कहानी कि कैसे आप आगे बढ़ा, ये 4M जो सुना था मैंने, वो बांग्लादेश का PhD मेडिकल ऑफिसर से ये कॉन्फ्रेंस हुआ था जकार्ता में। तो ये WHO एंड यूनिसेफ में ज्वाइन किया था। ये 4M's बार बार मुझे याद आ रहा था। ये 4M's का एग्जाम्पल आप आज दिखाएं, आपका कहानी में आ गया वो 4M's. The first M is manpower, how to utilize the existing manpower within the district or within the state, within the country to the best availability. The second M is about micro-planning, about how to really plan the program well down to the most grassroots level to execute the program. The third M is about mobilization, how to mobilize the population,
how to bring everyone together, make it a Jan program, make it a Jan Andolan kind of program, जिसमें मध्य प्रदेश ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, not only before the country, but I think before the whole world, how it made a people-centric program. And the last M, which is most important, is the monitoring. जो बार-बार आप लोग बोल रहे थे कि आप लोगों के जो people representative हैं, आपका जो administrative head है, district magistrate, district collector, वो कैसे program को monitor कर रहे थे. So ये manpower, the micro planning, the mobilization and the monitoring, ये जो 4 स्तंभ है, जिसके आधार पे एक प्रोग्राम या ये वैक्सीनेशन कैंपेन प्लान किया जाता है, ये आज बार-बार आप लोगों के कन्वर्सेशन में आ रहा था. जैसे मैं कह रहा था कि आप लोग जो काम कर रहे हैं इसको डॉक्यूमेंट होना चाहिए. ये डॉक्यूमेंटेशन सारे देश पढ़ेंगे, वहां से सारे दुनिया पढ़ेंगे. हम लोग भी कोशिश करेंगे आके आप लोगों का प्रोग्राम देखने के लिए, क्योंकि आप लोगों के सामने बात करना एक मतलब मेरा इंटरेस्ट अभी और भी ज्यादा हो गया आप लोगों से आज बात करके. एंड आई एम रियली so impressed talking to all of you, क्योंकि आप लोगों में जो grassroots level flavor था आप लोगों का conversation में, I'm really honored and I'm really privileged to be talking to you all today. Dhanyavad. Have a wonderful day, and Thank you. please convey my deep appreciation and thank you to all of your staff members for the wonderful job that they have done. Thank you.